Hello students, myself Rakesh Misra. This is the part 3rd video of cytology. In this video lecture, I will describe you the two important concepts. The types of cells, that is the prokaryotic versus eukaryotic, and plant cells versus animal cells. These two need to be described by you after the watching video carefully. So please be with the video till the end of video in order to clear your very important concept regarding the prokaryotes and eukaryotes. This is for both learners and and all those who actually having little knowledge about the cells. So one by one I will describe about the prokaryotic cells and eukaryotic cells. Keep in mind. Now back to the prokaryotic cells and eukaryotic cells. The first point is related to the prokaryotic and eukaryotic. Here you need to know what is the meaning of pro and eu. Listen, pro means primitive. Primitive means the primary, and eu means true. It means the real. Now back to the common things that are karyotic and karyotic. Karyotic word is related to the karyon. Karyon. It means the nucleus. So what does the meaning of, listen, what does the meaning of primitive type of nucleus and true type of nucleus? If you have any idea regarding that, then your concept is absolutely clear. So one by one I will describe you what is the meaning of true nucleus. Actually, the structure of cells, when you have a normal idea of cells, when you have idea of normal cells or the different kinds of other cells, then you will find at the center of each cells there is a boundary. There is the boundary of cell. There is the boundary of nuclear membrane, and that boundary consists the genetic materials of the cell, that is the chromosomes. So the genetic materials of the chromosomes are actually held in a boundary, and that boundary is known as nuclear membrane, NM. Here I have described you as NM, nuclear membrane. Nuclear membrane. So nuclear membrane is the boundary of cell that required to form the boundary of nucleus that required to form the complete and real type of nucleus. And inside the nuclear membrane there is the nucleoplasm and genetic material exists. So this is actually the material of nucleus, that is the nucleoplasm. So nucleoplasm is the center and the composition of nucleus that actually covered and surrounded by the nuclear membrane, and that forms the true nucleus. True nucleus. So what is actually the characteristics of true nucleus? The boundary or nuclear membrane. It means genetic material cannot enter into the cytoplasm. This is the plasma membrane, this is the cytoplasm, this is the nuclear membrane, and this is the genetic material. So genetic material, RNA, DNA, everything cannot be mixed up with the cytoplasm, so that the cells and their nucleus are actually get separated. Now back to the primitive type of nucleus. Actually in prokaryotic cells, the nuclear membrane is absent. Nuclear membrane is absent. There is no any nuclear membrane found. Nuclear membrane absent. Nuclear membrane absent means the genetic materials remain free, so that the cytoplasm can flow and touch to them, but the genetic material cannot be cannot be scattered elsewhere because of having their very special types of the protein and negatively charged DNA. देखो जेनेटिक मटेरियल, अभी आपको एक सीधा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर में घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बनवा देते हैं,
ठीक है। तो उनके यहाँ क्या होता है कि गाय बैल जो भी है उनका सामान, जैसे उनके यहाँ प्लांट है मैंगो का या फिर किसी भी चीज का कोई सामान जो उनके दरवाजे के सामने है वो उनका है, ठीक है, उसमें सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या जिनके यहाँ बाउंड्री नहीं होती है उनके यहाँ से उनका जो है गाय भैंस है उनके यहाँ मैंगो का पेड़ दूसरे के दरवाजे चला जाता है? नहीं, मतलब उनका भी वही जमीन है बट वो बाउंड्री करवा ली है, उनकी भी वही जमीन है जिन्होंने बाउंड्री नहीं करवाई। बाउंड्री न करवाने से ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर जमीन किसी और की हो जाएगी। ये बात अलग है, आजकल लोगों के दिमाग में बहुत सारे लोचे चलते हैं, लेकिन ये लीगली बात करें तो आप अगर बाउंड्री नहीं भी करवाते हैं तो भी आपका जमीन अपना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट हो गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, फिर भी क्या ये बॉडी के चारों तरफ फ्लो क्यों नहीं होते? बिकॉज ऑफ हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन हिस्टोन एंड निगेटिवली चार्ज डीएनए। इसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव का जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी मिलती है और ये फॉल्स न्यूक्लियस बनाते हैं। ये ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस नहीं बनाते, फॉल्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। द फॉल्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज द रेमनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये रेमनेंट ऑफ न्यूक्लियस है, यानी कि एक गलती से बना हुआ न्यूक्लियस। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में अपसेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक काम क्या है? एनर्जी इकट्ठा करता है। तो इसमें यूकैरियोट्स का काम तो चल गया, इकट्ठे एनर्जी इकट्ठा कर लिया, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कहां से एनर्जी मिलती है कि इनकी बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हल्का हल्का फोल्डेड ऐसे पार्ट होता है, कहीं कहीं बॉडी में हल्का हल्का क्या होता है कि ऐसे फोल्डेड पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, और ये प्लाज्मोडेस्मेटा एक्चुअली एनर्जी सोर्स का काम करता है, रेस्पिरेशन वगैरह का काम करता है, ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में। और इसमें भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यानी रेस्पिरेशन सोर्स का काम करता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोकैरियोट्स का या यूकैरियोट्स का? एब्सोल्युटली का प्रोकैरियोट्स का। तो इसमें लिखेंगे प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, इसमें लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। इसमें क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, इसमें लिखेंगे न्यूक्लियोइड एब्सेंट, ठीक। अब आता है नेक्स्ट। एक्चुअल में राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक 70S होते हैं, एक 80S होते हैं। जब मैं राइबोसोम के बारे में स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतने जाने राइबोसोम जो सेल्स में होते हैं वो सेल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। राइबोसोम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? हमारे सेल्स का। और ये सेल्स में राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो तरह का होता है, 70S मींस सब यूनिट एंड 80S, S मींस वहां भी सब यूनिट। ये 70S किसमें होगा? 70S होगा, इसको 705 मत मान लेना। 70S ये किसमें होता है? प्रोकैरियोट्स में। 80S टाइप ऑफ राइबोसोम किसमें होता है? ये यूकैरियोट्स में, ठीक है। एग्जांपल इसके बाद ले लीजिए आप, इसका एग्जांपल लीजिए द मोनेरंस। मोनेरंस मींस द बैक्टीरिया, ठीक है। और उसका एग्जांपल लिख लीजिए द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का एग्जांपल प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, मीयू, काउ, बफेलो एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब अगर मैं बोलूं प्रोकैरियोट्स तो इसका मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक इसका मतलब सेल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोकैरियोटिक cells, eukaryotic cells is clear. Now back to the plant cells versus animal cells. Now the plant cells and animal cells. I hope your concept regarding prokaryotic and eukaryotic is clear. Now there is need to clearance between the plant cells and animal cells. You are well familiar with the word plants and animals. You are animals and plants are neem, mango, etc. There are so many ways that you can categorize the plant cells from animal cells. But in this video lecture, in this topic, I have described you the standard points. That's why you can differentiate the plant cells and animal cells in your own language. That is the standard 5 and 5 to 10 points required. So here the
10 points I have described, I have taken out in order to differentiate the plant cells and animal cells. Now back to check the what are the standard 10 points that's why we can differentiate the plant cell from the animal cells. The first point is the cell wall. As you all know, plant cells are characterized by having the presence of cell wall. So cell wall is present in plant cells while absent in animal cells. For the point one, the plant cells possess cell wall and animal cells do not. Now back to the plastids. You all know, you are well familiar with the word chloroplast, that is provide the green color to the plants because of having a pigments chlorophyll, so that the plants able to perform the very specific phenomenon that is known as the photosynthesis. So with the help of plastids, with the help of chlorophylls, the plants perform the all kinds of function, which is characteristics of plant cells, while in animal cells no such kinds of cell organelles are found. So plastids are found in plant cells, while in animal cells plastids are absent. The third point, vacuoles. It is commonly known as food vacuole. It is commonly known as food vacuole. In plants, as you all know, plants are able to synthesize their own food. Then the food vacuole in plant cells are bigger than the animal cells. So it is big sized. Food vacuoles are big sized, and in animal cells the food vacuoles are often small. Reason? Because plant cells able to form their own food. अब जहां पे बिस्किट बनता है वहां पे बिस्किट ज्यादा होगा, कि जहां पे बिस्किट नहीं बनता है केवल खाया जाता है वहां पे बिस्किट ज्यादा होगा. तो यहाँ पे बिस्किट का मतलब है कि फूड जहाँ पे ज्यादा सिंथेसाइज हो रहा है तो उसकी स्टोरेज के जो पार्ट है, सेल के पार्ट है, वो ज्यादा बड़े होंगे. सीधी सी बात है, हमारे बॉडी में ऐसा कोई पार्ट है नहीं है जिसमें फूड सिंथेसिस हो, इसलिए हमारा जो फूड वैक्यूल होता तो है लेकिन छोटा होता है. ठीक है. नाउ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो प्लांट सेल्स में होते हैं वन साइड शिफ्ट होते हैं. ऐसे न्यूक्लियस है प्लांट सेल्स में एक साइड शिफ्ट होते हैं न्यूक्लियस. रीजन क्या है कि फूड वैक्यूल इनमें बड़ा हो, इसलिए न्यूक्लियस हल्का सा सेंटर से हल्का सा एक साइड में फिक्स शिफ्ट हो जाते हैं. और एनिमल सेल में सेंटर में, दैट इज शिफ्टेड एट वन साइड. एक साइड में शिफ्ट होते हैं और इसमें क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं. एनिमल सेल में कहां होते हैं, सेंटर में होते हैं. ये आपको दिमाग में रखना. 5 नंबर पॉइंट्स, शेप. प्लांट सेल्स का जो शेप होता है वो फिक्स होता है बिकॉज ऑफ हैविंग सेल वॉल. फिक्स्ड शेप. एंड एनिमल सेल्स नॉट फिक्स्ड. नॉट फिक्स्ड मींस इट इज इररेगुलर टाइप. इट इज इररेगुलर टाइप. प्लांट सेल में शेप उनका क्यों फिक्स होता है, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा अपने लिख में. बिकॉज ऑफ हैविंग द सेल वॉल. रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट सेल्स में क्या होता है, स्टार्च. फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पॉलीमर ग्लूकोज में यानी कि स्टार्च में. इसमें रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होता है, ग्लाइकोजन. नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट. रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन इन एनिमल्स. Lysosome, that is known as suicidal body. In plants, lysosome often absent or rare. It is often absent or rare. But animal cell, the lysosome is common. Lysosome called suicidal bag. Later the function, discovery and why called suicidal bag I will explain you in next video lecture. But keep in mind it is the characteristics of animal cells only. Cell division. Cell division in plant cells are characterized by having the cell plate methods. एक ऐसे सेल डिवीजन में एक सेल में एक प्लेट बनता है जो बराबर बराबर हिस्से में सेल्स को डिवाइड कर देता है. तो सेल प्लेट किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट सेल्स का. बाय मींस ऑफ सेल प्लेट, सेल डिवीजन बाय मींस ऑफ सेल प्लेट मेथड. एंड इन एनिमल सेल्स द सेल डिवीजन आर इररेगुलर टाइप. इररेगुलर मींस ये प्लांट्स है, ये एनिमल सेल्स है, इसमें कहीं से भी सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा. ठीक है, और वो सेल डिवाइड कर देंगे. यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, कहीं से भी हो सकता है. और फिक्स अमाउंट में दोनों सेल बनेंगे, दोनों में सब कुछ एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगा, दोनों में इक्वल रहेगा. बट उनका
कोई जगह निर्धारित नहीं, कोई जगह फिक्स नहीं, कहां से सेल डिवीजन करेंगे, उनका फिक्स एकदम मिड से करेंगे। प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल के बीच में हल्का हल्का गैप होता है, आप सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक प्लांट सेल है और ये दूसरा प्लांट सेल है, बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिससे कोई भी मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल्स का, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा, दैट होल ओवर द सेल वॉल। सो प्लाज्मोडेस्माटा आर फाउंड इन प्लांट सेल्स बट absent in animal cells. Now back to the amino acids. Almost all types of amino acids are synthesized in plant cells. That is, all types of amino acids synthesized. Amino acids synthesized. But in animal cells, only 10 types of amino acids synthesized. Only 10. Listen. And rest 10 which is not synthesized is very essential. That is comes from the other source. So there are two type of amino acids, the non-essential and essential. The amino acids that are synthesized in the human body and other animals body are actually non-essential. घर की मुर्गी साग बराबर पड़े होंगे, आप जानते भी होंगे। बॉडी में जो सिंथेसाइज होता है वो कोई वैल्यू नहीं है, हालांकि वो जरूरी है, उसका बॉडी में रोल प्ले करता है, लेकिन चूंकि बॉडी में सिंथेसाइज होती है उसको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। नॉन एसेंशियल मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी में कोई काम नहीं करता, बॉडी में सिंथेसिस होने की वजह से ऐसे अमीनो एसिड्स को बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जो 10 जो जरूरी है बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है उसको एसेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्योंकि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट दोनों पार्ट, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक का डिफिनेशन हो या फिर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, इसका डिफिनेशन हो, क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएगा, या लाइव क्लास में नेक्स्ट में इसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है ना? These are 10 standard points that you need to write in total view. That is not a trick or cross. You need to write the cell wall present, cell wall absent, plastid present, plastid absent. The cells, plant cells are the vacuoles are big sized, the vacuoles are small sized. ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना और इस तरह से एक्सप्लेन करना है। The structure of plant cells and structure of animal cells is your homework. I think you are well familiar from the class 7, from class 8. You are well familiar with the word structure of animal cells and plant cells. So, with the help of NCERT book, you need to draw the well, neat and clean diagram of the animal cells as well as the plant cells carefully. Thank you.